شبیر نے مڈ رانجھا کے گاؤں غوث محمد والا میں ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جس کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو گیا تھا۔ یہ مڈ رانجھا میں گاؤں غوث والا کے مناظر ہیں۔ بانس اور گھاس پھوس سے بنے ہوئے اس شیڈ کے نیچے گاؤں کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ گھر کی کچی دیواروں کے ساتھ ہی کھیت ہیں جس میں ہری بھری فصلیں لہلہا رہی ہیں۔ مال مویشی، درخت، کھیت، یہ سب کچھ بہت پرسکون دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اسی گھر میں جہاں دیواروں پر اوپلے تھاپے گئے ہیں اور آنگن میں موجود ہر چیز بے ترتیب دکھائی دے رہی ہے، یہاں کبھی زندگی مسکراتی تھی، لیکن ابھی صرف 3-4 ماہ پہلے اسی گھر میں وٹے سٹے پر بہن رانی اور بھائی نور حسن کی شادی ہوئی تھی اور ان کی ماں خوش تھی کہ بیٹے اور بیٹی کا گھر بس گیا۔ مگر سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اندر ہی اندر کوئی چنگاری سلگ رہی تھی۔ بیٹا نور حسن اپنی ماں اور بہن رانی سے خوش نہیں تھا۔ شبیر نے ماں بیٹے کے درمیان اختلاف اور ناراضی کے بارے میں تحقیقات کی تو ایک دل سوز کہانی سامنے آ گئی جو اس طرح۔ ایک دن نور حسن کی ماں اور بہن رانی کھیتوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی گھر آ رہی تھی کہ انہیں راستے میں ایک لڑکا ملا جس نے ماں بیٹی کی مدد کی اور ان کا سامان موٹر سائیکل پر ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ شبیر دیکھ رہا تھا کہ رانی اور اس کی ماں بھاری سامان اٹھائے بڑی مشکل سے پیدل چل رہی تھی۔ ان کے قریب سے گزرنے والے نوجوان نے موٹر سائیکل روک لی تھی۔ ارے خالہ، کہاں جا رہی ہو؟ تو سامان مجھے تو میں چھوڑا تھا۔ تم کون ہو بس؟ اور خالہ کسے کہہ رہے ہو؟ ارے آپ تو برا مان گئی۔ یہ بیٹی ہے آپ کی؟ ہاں، بیٹے کو تو توفیق ہوتی نہیں ہے، بیٹی ہے میری۔ لاؤ سامان مجھے تو میں چھوڑاتا ہوں۔ وہ پیچھے والی گلی میں گھر ہے نا آپ کا؟ ہاں ہاں، پیچھے ہی ہے میرے گھر میں۔ لاؤ مجھے تو میں چھوڑاتا ہوں۔ یہ لے بیٹا، یہ یہاں رکھ لے۔ لے بیٹا، یہ بھی لے جا۔ نوجوان سامان لے کر چلا گیا اور دونوں ماں بیٹیاں آہستہ آہستہ پیدل چلتی ہوئی گھر کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ ایک تو مت تم بھی نا، ہر ایک پر اعتبار کر لیتے ہو آنکھیں بند کر۔ کیا کرتی، اتنی تمیز سے بات کر رہا تھا، مجھے تو شریف لڑکا لگ رہا ہے۔ ہاں مجھے بھی، لیکن پھر بھی اماں۔ ارے کیا دکھا رہا ہے۔ نوجوان سامان چھوڑ کر دور سے ہاتھ ہلاتا ہوا گزرا تو ماں بیٹی نے بھی ہاتھ ہلا کر اس کا جواب دیا۔ تو کچھ ہاتھ لاتے ہوئے جا رہا ہے مجھے۔ تو اب آئے اور کرا اس بات، چلو اب گھر، پتہ نہیں سامان پہنچایا بھی نہیں پہنچایا۔ شبیر کو بعد میں معلوم ہوا کہ مبینہ طور پر گاؤں کے اس نوجوان نے ماں بیٹی دونوں سے دوستی کی ہوئی تھی اور یہ دوستی اتنی بڑھی کہ ایک دوسرے کے گھر ان کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا، مگر یہ بات رانی کے بھائی کو پسند نہیں تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ رانا کا بھائی نور حسن اپنی ماں سے لڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں منہ بنائے بیٹھا اور کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ میں کیوں کھانا نہیں کھا رہا؟ ارے مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اماں، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ارے منہ سے تو بول، کس بات کی حد ہو گئی؟ یہی کہ اس عمر میں آپ نے اتنی دوستیاں پال رکھی ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہو گاؤں والے سارے اندھے؟ اللہ، شرم آنی چاہیے تجھے، تو اپنی ماں کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اور تو اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گھومتی ہو، اور کیوں آتا ہے اس گھر کے اندر وہ، اور آپ لوگ کیوں جاتے ہو اس گھر پہ؟ ارے دھوس ہے کیا؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، ہمارے کام آ جاتا ہے۔ بس قبضہ میں، بس میرا منہ مت کھلواؤ۔ آج کے بعد وہ اس گھر میں نہیں آئے گا، اور آنا ہی ہے نا تو شادی کر دو رانی کی اس کے ساتھ۔ سن لیا آپ نے؟ نور حسن، ارے میری بات تو سن۔ شور شرابہ سن کر بیٹی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ ارے اماں کیا ہو گیا؟ کیوں لڑ رہی تھی بھائی سے؟ دیکھ تو صحیح، ایسا لگ رہا ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، بہت چلا رہا اپنی مجھ سے۔ اماں تمہیں پتا ہے نا بھائی کا پاگل ہے بالکل، میں سمجھاؤں گی سمجھ جائے گا۔ تجھے اس کی عادت کا پتہ نہیں ہے کیسا ہے وہ، سنی نہ لے وہ۔ ماں کہا نا خود کو ہلکان مت کرو، اور دیکھو بھائی کھانا کھا کر بھی نہیں گیا، تم پریشان مت، تو سمجھا دوں گی۔ اس واقعے کے بعد نور حسن کی ماں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی وٹے سٹے پر شادی کر دی، لیکن شادی کے باوجود بجائے تنازع بننے والے لڑکے سے تعلقات ختم نہ ہو سکے، جس کے نتیجے میں گاؤں کے لڑکے کی بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تم میری ایک بات کا جواب دو، یہ رانی اور اس کی ماں کے ساتھ کیا چکر ہے تمہارا؟ کیوں ملتے ہو ان سے؟ شادی شدہ ہو کے شرم نہیں آتی حرکتیں کرتے ہوئے؟ ماں کے ساتھ چکر ہے یا بیٹی کے ساتھ؟ بکواس بند کرو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ توڑ دو میرا منہ، میں نہیں چپ کروں گی، جواب دو میری بات کا۔ دونوں کے ساتھ ہے، جو کرنا ہے کر لو۔
तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हासिल करती हूँ। बकवास बंद करो और हटो मेरे सामने से। ये ना हो कोई चीज उठा के मार दूं मैं तुम्हें। मुतनाज़ा लड़के की बीवी इंतहाई तैश के आलम में घर से निकली और सीधी रानी के भाई के पास पहुंच गई, जो उसे रास्ते में मिल गया। बात सुनो, तुम रानी के भाई हो ना? हाँ, मैं रानी का भाई हूँ, मगर आप कौन? तुम्हारी माँ बहनें ना मेरे शौहर को बरगला रही हैं, रोज उससे मिलती हैं। अगर मेरा घर खराब हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम तुम मेरी माँ बहन पे लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है पर तुम्हारी माँ बहनों को शर्म नहीं आती है। उनसे भी ज्यादा बेगैरत हो तुम। बर्दाश्त, जो इससे आगे एक लफ्ज निकाला तुमने। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ से दफा हो ही जाऊंगी, लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ बहनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी, फिर तुम देखना उनकी हकीकत को। हाँ हाँ, चलो निकलो यहाँ से। किस्सा ये था कि शादी के सिर्फ 3 माह के बाद नूर हसन की बहन रानी अपने घर आकर बैठ गई थी और मुबैना तौर पर अपने आशना से मुलाकातें भी कर रही थी, और रानी की माँ भी मुबैना तौर पर अपनी बेटी की हौसला अफजाई कर रही थी। रानी के भाई से दोनों माँ बेटियों की शिकायत के बाद मुतनाज़ा नौजवान की बीवी रानी के ससुराल पहुंच गई। शब्बीर ने देखा कि मुतनाज़ा नौजवान की बीवी रानी के ससुराल का दरवाजा खटखटा रही थी। दरवाजा रानी की सास ने खोला और उसे अंदर बुला लिया। अरे भाई, कौन है बेटा? अब रानी की सास है। हाँ हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। क्या बात है? आपको अंदाजा तो होगा आपकी बहू क्यों चली गई है मेके। तो तुम्हें इससे मतलब? मुझे इससे मतलब है, तभी मैं आई हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कौन है बेटा? अब रानी की सास है। हाँ हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। क्या बात है? आपको अंदाजा तो होगा आपकी बहू क्यों चली गई है मेके। तो तुम्हें इससे मतलब? मुझे इससे मतलब है, तभी मैं आई हूँ। आपकी बहू ने मेरे शौहर को फंसा रखा है। अब कुछ समझ आ रही है आपको? तुम ये कैसे कह सकती हो? अब बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये रखिए। अगर पढ़ना नहीं आता ना तो ये तस्वीरें देखिए। रात रात भर दोनों फोन पे बातें करते हैं। आप अपनी बहू को समझा लें, अगर वो बात आई ना तो मैं थाने में रिपोर्ट कराऊंगी। समझा लें उसको। इस वाक़े के बाद रानी की सास और ससुर ने अपनी बहू को बेटे से तलाक दिलवा दी। चूंकि ये वट्टे सट्टे की शादी थी, इसलिए बहन को तलाक के बाद उसके भाई नूर हसन की जिंदगी में भौचाल आ गया और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। इन तमाम वाकयात ने नूर हसन को शदीद ज़हनी सदमा पहुंचाया और वो तैश में आ गया। शब्बीर ने देखा कि नूर हसन बेचैनी से टहल रहा था। इस दौरान उसे अपनी माँ दिखाई दी तो वो उस पर फट पड़ा। मालूम तो हो गया होगा कि रानी को तलाक क्यों हुई है। वो तो उनकी नीयत खराब थी, लालची लोग थे, धैर्य नहीं दिया था हमने। हाँ, वो लालची लोग। अम्मा, वो लालची लोग नहीं थे, मेरी अपनी बहन बद किरदार है। जबान संभाल के बात कर तू। हाँ, मैं संभाल के बात कर। हाँ अम्मा, दिखाऊं मैं आप लोगों की वीडियो तस्वीरें? बेशरम, नमक हराम, इसी दिन के लिए तो तुझे पैदा किया था। हाँ, शर्म आनी चाहिए मुझे। पूरा गांव मुझे ताने दे रहा है। आज के बाद आपसे और इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के। जा, दफा, हमें भी ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। नूर हसन चीजें तोड़ता फोड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। नूर हसन का बाप कई बरस पहले 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़कर मर गया, जिसके बाद नूर हसन की मां शहनाज बीबी ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाला था। लेकिन इसी दौरान मुबैना तौर पर नूर हसन की मां की दोस्ती गांव के एक लड़के से हो गई, जो मुबैना तौर पर दोनों मां बेटी से बैक वक्त ताल्लुकात रखे हुए थे, और यही बात बिला आखिर नूर हसन के घर की तबाही का बायस बन रही है। एक रात शब्बीर ने देखा कि तारीकी में जब उसका छोटा 12 साला भाई, उसकी माँ और बहन आंगन में चारपाइयों पर सो रहे थे, नूर हसन ने एक छुरी निकाली और फिर उसे चारपाइयों की जानिब बढ़ते देखा गया।
शाह के बेटे ने मुबैना तौर पर बदचलनी के शुबे में अपनी मां और बहन को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम के छोटे भाई ने दौड़कर ये इत्तला अपने चाचा तक पहुंचाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये है मुलजिम का छोटा भाई। चाचा नहीं उस मारिया नाम से नाम चाची अलाया इन उठा के ले गया। ओ मामा जरा उस फाड़ के दिता बताया वो आप कौन ले गए। शब्बीर ने सगे बेटे के हाथों माँ और बेटी के कत्ल के बाद उनके रिश्तेदारों को आहो बुका करते देखा था। पहले कोई किसी मुद्दे ऐसा सुनी गल का ही नहीं। 3 महीने पहले शादी होगी ते कोई आपस में ही मतलब कोई माँ पुत्र में कोई मसला मसाइल बनया, कोई पैसे गिनते गिनते वत्ते ते या जो भी बनया ना माँ पुत्र में आप ही मामला बनया ना। सन तो उस वक्त पता लगा जिस वक्त छोरे दसिया मैं आया काम हो गया। अस गए इससे वन फाई तकाल पीती ते अवल पुलिस ने की तो असा मुदई आप बनना चाहते हैं और पुलिस ने मुदई के खिलाफ मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें नूर हसन नामी लड़के ने अपनी वालदा और बहन वालदा शहनाज बीबी और बहन इम्तियाज रानी को रात को सोते में कस्सी के वार करके कत्ल कर दिया। उसको पुलिस ने पार्टी के साथ जल्दी रेड करके जल्दी हमने गिरफ्तार भी कर लिया। तो उसके खिलाफ पूरे शहादतें इकट्ठी की गई हैं ताकि वो इस किस्म की जो उसने इतना बड़ा घिनौना जुर्म किया है इससे वो बच ना पाए। जो भी इसमें मुदई या उस जो लवाहिकीन थे जो मुदई बनना चाह रहे थे उन सबको हमने शामिल तफ्तीश किया है। उन सब के हमने 161 के बयान भी रिकॉर्ड किए, तो उन सबको भी हमने ऑन बोर्ड लिया ताकि इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा शहादतें जो हैं वो सफ़ा मिसल पे ला के तो हम इसको एक अच्छा केस तैयार करके इसको चालान अदालत करें। इस अफसोसनाक वाक़े पर पूरा गांव सोगवार था। शब्बीर ने देखा कि मकतूलीन के रिश्तेदार घर में जमा थे और पूरे गांव की फजा सोगवार थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने चिश्तिया के एक नौजवान को देखा है जिसने फेसबुक पर खानपुर के एक जमींदार और स्कूल टीचर से दोस्ती कर रखी थी। ये दोस्ती क्या रंग लाई, देखिए जो शब्बीर ने देखा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रेहान अपने घर में फेसबुक पर किसी से बात कर रहा था। चैट बॉक्स में किसी आबिद नामी शख्स ने रेहान से उसका नंबर मांगा जो उसने दे दिया, जिसके बाद आबिद ने रेहान को फोन कर दिया। हेलो, कौन? आबिद साहब? अरे सर, यकीन ही नहीं आ रहा कि आज आपसे बात हो रही है। अरे मियाँ, छोटी सी दुनिया है। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ सर, बस बीच में थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी तो नवीजाबाद में हूँ अभी। ओह अच्छा, मेरे लिए किसी किस्म का भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। मैं खानपुर में यहाँ टीचर हूँ और जमींदारी भी है मेरी। वेरी नाइस सर, वैसे मैं कभी खानपुर नहीं गया। अरे बाबा तो आ जाइए ना, आपकी खिदमत करेंगे। बल्कि ऐसा करो, मेरे स्कूल में आके दाखिला ले लो। बाबा कोई फीस वीस भी नहीं लेंगे तुमसे। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी, मैं अपने अब्बू से पूछ के बताऊंगा। नो प्रॉब्लम बाबा, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। तुम मेरा नंबर सेव कर लो, फिर बात होगी। मुझे भी सर, खुदा हाफिज। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। कॉल खत्म होने के बाद रेहान बहुत खुश था। इस दौरान रेहान के बाप ने उसे आवाज दी। बेटा रेहान, कहाँ रह गए हो बेटा? जी अब्बू, आया। हर वक्त फेसबुक पे लगे रहते हो। जी अब्बू। बेटा वो आटा ले आओ घर के लिए, और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह मैंने तुम्हारी फीस का भी बंदोबस्त कर दिया। नहीं अब्बू, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे एक दोस्त हैं खानपुर में, वो जमींदार हैं और स्कूल में पढ़ाते भी हैं। उन्होंने मुझे कहा है अगर तुम हमारे स्कूल में एडमिशन ले लोगे तो वो फीस भी नहीं लेंगे। तो बेटा तुम रहोगे कहाँ पे और तुम्हारे खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा? अब उनका एक बड़ा सा डेरा है, मैं वहाँ रहूंगा, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। देख लो बेटा, आजकल बहुत बुरा माहौल चल रहा है, कोई उल्टा सीधा आदमी ना मिल जाए तुम्हें। नहीं नहीं अब्बू, वो बाल बच्चे वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बल्कि आज तो हमारी कॉल पे भी बात हुई थी।
अब तुम 18 बरस के हो गए, जो भी फैसला करना देखभाल के करना। अब जाओ जल्दी से आटा ले आओ। ठीक है अब्बू। मास्टर आबिद के बुलाने पर रेहान चिश्तिया से खानपुर आ गया, जहां मास्टर ने उसका दाखिला करवा दिया और उसे चाय पानी भी देने लगा। बाबा नूर मोहम्मद, मेहमान है मेरा ये, इसको बाजार लेकर जाओ और अच्छे से कपड़े दिला कर ला। जो हुक्म आपका। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मास्टर आबिद अपने डेरे पर रेहान से गपशप कर रहा था और उसके मुलाजमीन उसकी खिदमत कर रहे थे। अरे नहीं मास्टर साहब, इसकी क्या जरूरत है, मैं अपने कपड़े लेकर आया हूँ वैसे भी, और अगर जरूरत हुई तो बाजार से जाके खुद ले आऊंगा। क्यों, नूर मोहम्मद से डर लगता है क्या? अरे बाबा, ये हमारा बहुत पुराना और वफादार मुलाजिम है। नूर मोहम्मद जी। अरे बाबा, खाने का इंतजाम तो कर। वो याद आया, कल हिरन शिकार किया था ना? हाँ, उसका जरा रोस्ट बनवा, हमारे नौजवान को पता तो चले। हाजिर भाई, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मास्टर साहब एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ भाई वाह, तुम्हें कैसे पता चल गया पहली मुलाकात में? अरे मास्टर साहब, इंसान की फितरत का पता लग ही जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है। ये हमारा साहब तो है ही बहुत अच्छा। बाकी मास्टर साहब, आपकी बाबा से बात कराऊं? हाँ, क्यों नहीं बाबा, जोर लगा जोर लगा। भाई हाजिर। शब्बीर ने देखा कि रेहान ने अपने बाप को फोन कॉल मिलाकर मास्टर आबिद से उसकी बात करवा दी। हाँ बाबा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? नहीं बच्चा आपका यहाँ बड़ा खुश है। रेहान ने खानपुर में अपने फेसबुक दोस्त मास्टर आबिद के साथ रहते हुए अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था कि रेहान का दिल उचाट हो गया और उसने घर वापस जाने पर इस्रार करना शुरू कर दिया। क्या हुआ रेहान? बाबा, घर जाने का फैसला तुमने अचानक कर लिया? मास्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ का माहौल कुछ। क्या हुआ? अरे बाबा, किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ? मास्टर साहब, मुझे आपके मुलाजमीन से बहुत डर लगता है, न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये लो, तुम तो लड़कियों की तरह शर्माते हो, मोहम्मद तो ऐसी बातें करते हैं, तुम भी जवाब दिया करो ना। नहीं मास्टर साहब, मुझसे ये सब नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा। जब तुम्हें जाना हो ना, मुझे बता देना, तुम्हें बस में सवार करा देंगे। अब तो खुश होना है? शब्बीर को मालूम हुआ है कि मास्टर आबिद नामी शख्स इंसान के रूप में शैतान था और रेहान पर मुबैना तौर पर बुरी नजर रखता था। उसके मुलाजमीन भी मास्टर की शय पर रेहान को तंग कर रहे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रेहान एक कमरे में सो रहा था कि ऐसे में एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। खटपट हुई तो रेहान जाग गया और उसने फुर्ती से मुलाजिम का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें मैंने मना किया था ना मेरे कमरे में आने से, फिर क्या करने आए उधर चोरों की तरह? हाँ तो छोड़ मेरा, और ज्यादा तीस मार खा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ना, ये मास्टर साहब का डेरा है, यहाँ तेरे जैसे लड़कों के साथ बहुत कुछ होता है। ये देख, इसे पिस्टल कहते हैं, पिस्टल, और तेरे जैसों के लिए तो एक ही गोली काफी है। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, चाप मेरे साथ चल चल। उस रात जमींदार मास्टर आबिद की शय पर जमींदार के मुलाजमीन ने रेहान से बंदूक की नोक पर मुबैना जाती की थी, जिसके बाद जमींदार भी इस घिनौने खेल में शामिल हो गया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रेहान शदीद गुस्से के आलम में था, तो इधर से उधर टहल रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि रेहान बस अड्डे की तरफ चल दिया। अड्डे पर पहुंचकर उसने बस का किराया मालूम किया और अपनी खाली जेबों को देखकर उदास हो गया। भाई मेरा पैसे नहीं है, मुझे चिश्तिया जाना है, मेरी मदद कर दोगे? भाई मेरे पास कोई पैसे में से नहीं है, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। रेहान मायूस होकर वापस मास्टर आबिद के डेरे की तरफ लौट आया, जहां मास्टर आबिद अपने मुलाजमीन के साथ मौजूद था। अरे आओ बाबा, रहना आओ, कहाँ चले गए थे? अरे तुम लोग जरा जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। अरे बाबा, अभी तक नाराज हो? गुस्सा छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। दोस्त तो तुम मेरे, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मतलब मुझे घर जाना है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं घर जाके आपको सब लौटा दूंगा।
हाँ बाबा हाँ, पैसा भी मिल जाएगा, बस तुमको मेरा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या मतलब? अरे बाबा तुम गलत समझ रहा है। मतलब ये है कि पूरे महीने जो मैंने तुम पे खर्चा किया है ना, ये मुझको वापस करो, फिर बेशक अपने घर जाओ। लेकिन वो तो आपने अपनी मर्जी। पागल समझाने रखो, कान खोल के सुन ले, एक पैसा नहीं दूंगा तुझको मैं। हाँ अलबत्ता दोस्ती करोगे ना तो फायदे में जाओगे, गाड़ी भी लेके दूंगा तेरे को। क्या बकवास है ये? तुमने यहाँ मुझे धोखे से बुलाया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, बच्चा समझा है क्या मुझे? जा रहा हूँ मैं और लानत भेजता हूँ तुम्हारे पैसे पे, जो करना है कर लेना। अरे जा जा देखो, कान खोल कर मेरी बात सुन ले। मेरे बारे में या मेरे मुलाजिम के बारे में किसी को बताए ना, यहाँ लाके तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। जा दफा इधर से। रेहान मास्टर के डेरे से सीधा बस अड्डे पहुंच गया। रेहान के जाने के बाद मास्टर को धड़का लगा कि रेहान कहीं पुलिस में उनकी मुबैना ज्यादतियों के बारे में शिकायत न कर दे। शब्बीर ने देखा कि रेहान के जाने के बाद मास्टर आबिद सख्त परेशान था कि इसी दौरान उसका मुलाजिम उधर आ निकला। अरे नूर मोहम्मद, ओ नूर मोहम्मद। हाजिर साईं। हाँ साईं, खैरियत, आपने मुझे याद किया। अरे बाबा गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हो गई साईं? अरे वो छोरा नहीं था रेहान, रेहान। हाँ। अरे वो भाग गया है, सीधा अड्डे पे पहुंचा है। अरे मेरे को डर है कि थाने नहीं पहुंच जाए। तू एक काम कर, तू भाग के अड्डे पे जा, इससे पहले कि वो पुलिस तक पहुंचे तू पकड़ के लाश को इधर। साईं आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझसे बच के नहीं जाएगा वो। शाबाश, जल्दी है, जल्दी जा। उस रात जब उसे मुलाजिम पकड़कर डेरे पर ले आए तो मास्टर आबिद और उसके मुलाजिम ने एक बार फिर उसे ज्यादती का निशाना बनाने पर इसरार किया। रेहान के इनकार पर उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और फिर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और लाश को वहीं डेरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। उधर बेटे से राब्ता न होने पर रेहान का बाप खानपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने कार्रवाई की और सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर मास्टर आबिद समेत 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की निशानदही पर रेहान की लाश भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 2-3 बजे मेरे पास आया कि मेरे बेटे का 15-20 रोज से मोबाइल बंद है। मुझे लगता है कि इधर मास्टर आबिद जिसके पास ये आता था तो उसने इसको या तो मार दिया है या कहीं छुपाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदिन 6 आवर्स ये बच्चा मुलजिम को अरेस्ट किया। उसकी निशानदेही पर उसके डेरे पे उसने दबाया हुआ था, वो उसकी डेड बॉडी निकलवाई और 5 में से 4 मुलजमान अरेस्ट कर लिए। एक बाकी जो इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स वो भी अरेस्ट हो जाएगा। जो मेन मुलजम है SHO सैफुल्लाह कुरैशी ने, उसका नाम है आबिद, जो एक मकामी जिम्मेदार भी है और एक स्कूल में टीचर भी है। उसको गिरफ्तार किया, फौरी तौर पर उसकी इंटेरोगेशन करके उसने तस्लीम किया कि वाकई मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने अपने घर में ही अपना जो धाना मवेशियाँ उसके अंदर एक गहरा गड्ढा खोद के उसको वहाँ दफन कर दिया। ये है मुलजिमान जिन्हें गिरफ्तार करके थाने में रखा गया था और ये है मरकजी मुलजिम मास्टर आबिद, जिसने एक भोले भाले लड़के को पढ़ाई और खर्चे पानी की लालच देकर मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया। रेहान का बाप अपने बेटे की मौत पर उदास था। 14-15 दिन से उसके मोबाइल बंद हो गए, 2 सिमें थी उसके पास, दोनों बंद। हम परेशान हो गए। हम आए SHO साहब के पास, उनसे हमने दरख्वास्त दी कि सर हमारा बच्चा ये नंबर बांधा है फलानी जगह पे, वो हमें पता है कि रहता है, आप हमारी वो बच्चे को तलाश करवाएं। तो उन्होंने बड़ी उनकी हिम्मत, उनकी मेहरबानी कि वो हमारे साथ गए। उन्होंने 5-6 घंटे के अंदर बच्चा भी बरामद करवाया, लाश, और मुलजिम भी पकड़े। शब्बीर ने खानपुर में पेश आने वाले इस बदतरीन वाक़े की मजम्मत की है और मुलजिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शब्बीर का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां सड़क पर लोग ही लोग थे। हर तरफ शोर गुल और हंगामा था। ये जहलुम का एक इलाका था जहां कोई बड़ा सानिहा पेश आ गया था। शब्बीर ने देखा कि एक शख्स गुस्से और इश्तियाल में कुछ कह रहा था और एक औरत उससे बहस कर रही थी।
शब्बीर ने देखा कि एक शख्स गुस्से और इश्तियाल में कुछ कह रहा था और एक औरत उससे झगड़ रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि सड़क पर कुछ लाशें पड़ी थीं। इन लाशों में एक औरत और 4 बच्चे शामिल थे। कुछ ही देर में शब्बीर ने देखा कि सड़क पर एक औरत दुहाई दे रही थी। मेरी फरजाना, मेरी सना, मेरा इब्राहिम, मेरा सबान। एक बूढ़ा था जो अपने घर में बेबसी से रो रहा था। एक बूढ़ी थी जो फरियाद कर रही थी। शब्बीर ये मनाजिर देखता रहा और फिर शब्बीर को पता चला कि खादिम हुसैन नामी शख्स का पूरा घराना कत्ल कर दिया गया था। बीवी और 4 छोटे छोटे बच्चों को सरे राह गोली मार दी गई थी। फिर शब्बीर उस शख्स के नजदीक गया जो एक औरत से बहस कर रहा था। यही खादिम हुसैन था। शब्बीर ने सुना कि खादिम हुसैन कह रहा था कि उसके बीवी बच्चों को उसके सगे बड़े बेटे नादिर ने गोलियां मारी थी। मेरा बेटा, उसके नाम नादिर है, और मरवाने वाली जो है ना, मेरा छोटा भाई सक्का है, मेरा भतीजा है, मेरी बड़ी बेटी है, 4 बेटियां और हैं, उन्होंने उसको मरवाया। 5 जाबाक हुए और बेटे में मेरे ने फायरिंग की है। इस हश्र जैसे मैदान में शब्बीर को लोगों की ज़बानी मालूम हुआ कि खादिम हुसैन एक अच्छा खाता पीता इंसान था, दुबई में रहता था और जेहलम में उसके पास जायदाद थी। उसको 15 साल पहले हमने तलाक दी है। 5 बेटियां, एक बेटा। क्यों? वो जिस्म फरोश औरत थी, इसलिए। एक आरामी बच्चा उसका अभी हमारे गांव में पाल रहा है, तकरीबन उसकी 11 से 12 साल उम्र है। सवाल ये है कि क्या पहली बीवी ने खुद पर इतने संगीन इल्जामात लगने के बाद अपने बेटे को बाप के खिलाफ उकसाया था, या फिर पहली बीवी और उसके बच्चों ने जायदाद की खातिर मिलजुल कर इतनी भयानक साजिश तैयार की थी? शब्बीर वहीं सड़क पर मौजूद रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने पूरी कहानी खुलती चली गई। दूसरी शादी का होना था कि पहली बीवी का बड़ा लड़का आपे से बाहर हो गया और वो मौका बेमौका अपनी दूसरी माँ से बदतमीजी करने लगा। उसे अपनी दूसरी माँ और सौतेले बहन भाइयों से शदीद नफरत थी। उसका ख्याल था कि बाप की जायदाद उसके सौतेले भाई बहनों में तकसीम हो जाएगी। फिर उसने एक भयानक मंसूबा बनाया, क्यों न सौतेली माँ और भाई बहनों का सफाया कर दिया जाए। बाप बेटे के सामने आया तो उसने बाप को गोली मारने के बजाय भागना मुनासिब समझा। इस कयामत खेज वाक़े के बाद पूरा इलाका सड़क पर निकल आया। इस वाक़े के बारे में खादिम हुसैन ने जो तफसीलात बताई थी वो ये है। कौन ने मारे? जी, नादिर हुसैन। रिश्ते में क्या लगता है आपका? वो मेरा बेटा है। क्यों उसने इस तरह किया यार? वो जदाद बोलता था, ये बच्चे बीवी या बच्चे हैं, ये जदाद ले लेंगे, जदाद के लिए उसने मारा। आपका उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ था घर में या वैसे ही? नहीं, 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था, तो हम लोग ससुराल के घर आ गए हैं। ठीक तो आज तारीख पर गए हुए थे। शब्बीर को उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब खादिम हुसैन के ससुराली खादिम हुसैन पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि यह बाप बेटे की मिली भगत थी। शब्बीर ने देखा कि 5 मकतूलीन की लाशें सड़क पर पड़ी हुई थीं और इतनी देर में पुलिस भी जाए वकूफ पर पहुंच गई थी। खादिम हुसैन के सगे बेटे मुल्जिम नादिर को गिरफ्तार करने के अगले रोज डीपीओ जेहलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तफसील बताई थी। पता बरारी करने पर हमें मालूम हुआ कि ये एक नादिर नामी लड़के ने अपनी सुतेली माँ फरजाना, जिसकी उम्र तकरीबन 42 से 43 साल थी, और उसके 4 बच्चे बिलतरतीब सना जिसकी उम्र 12 साल थी, इसी तरह इब्राहिम बउमर 9 साल, सुभान बउमर 3.25 साल और कशमाला जो सबसे छोटी बेटी थी उनकी, उसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल थी। बहुत ही वहशियाना तरीके से उनका कत्ल कर दिया और हमने फौरी तौर पर जो ये हमारा मुल्ज़िम था इसके बारे में जो उसके वालिद साहब हैं खादिम, उससे तफसील ली, उसका शनाख्ती कार्ड लिया और फिर उसकी शनाख्ती कार्ड से हमने जो उसकी सिम्स हैं उसके नाम पर वो ट्रेस की। कुछ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसकी लोकेशन जब ली
تو الحمدللہ 24 گھنٹے سے بھی قلیل مدت میں ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ شبیر کو معلوم ہوا ہے کہ خادم حسین کا بڑا بیٹا نادر اپنے باپ کو بلیک میل کرنے لگا تھا، جس پر باپ اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کر رہا تھا۔ اسے گاڑی دلوائی تھی، کاروبار کے لیے پیسے بھی دیے تھے، لیکن لالچی اور بدبخت بیٹے نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اس کی نظر باپ کی زرعی زمین اور مکان پر تھی۔ شبیر کا کہنا ہے کہ ذرا سوچئے، جس کا پورا گھرانہ قتل کر دیا جائے اور وہ بھی سگے بیٹے کے ہاتھوں، تو اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خادم حسین انتہائی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ ٹائر دے نال گڈی کی ماریا، میں سمجھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور نے ایک بار کے ٹلے سی تھلے، ہاں جی وہ فائر شروع کیا، میں نالو نہیں دیکھا، میں اس نے مگر لگا میں بغیر تو مینوں مار، اس طرح میں کتا سیار میرے تے، پتہ نہیں گولیاں موکیں کی ہو۔ شبیر نے دیکھا کہ مقتولہ کی بہن، ماں، نانی، نانا سبھی صدمے سے نڈھال تھے۔ یہ ہے وہ اندوہناک مناظر۔ میری ہمشیرہ دے 4 بچے 5 ساڑے قتل ہوئے، سانو انصاف دلانا چاہیے۔ جڑے اوپرلیاں دی ماں دے پیڑاں نے سارا کام کروایا، ساری دی نفس انہیں سارے گرفتار کرنا چاہیے، سانو انصاف ملنا چاہیے۔ خادم حسین جس کے 4 بچے اور بیوی قتل کر دی گئی مسلسل صدمے میں ہے۔ اسے ایسے کڑے وقت میں سسرالیوں سے ہمدردی کی امید تھی، لیکن خادم کے سسرالی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ باپ بیٹے کی ملی بھگت تھی۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اصل نفرت تو بیٹے کو باپ سے تھی، بیٹے نے باپ کو کیوں زندہ چھوڑ دیا۔ خادم حسین خاموشی سے یہ صدمہ برداشت کر رہا ہے اور انصاف کی امید لگائے بیٹھا ہے، مگر کون سا انصاف؟ انصاف تو یہی ہوگا کہ قاتل کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، مگر کیا کوئی باپ اپنی سگی اولاد کو پھانسی پر چڑھتا دیکھ پائے گا؟ یہ مناظر ایک بار پھر دیکھ لیجئے، جب سڑک پر تازہ تازہ واقعہ رونما ہوا تھا اور ہر طرف شور و فغاں تھا۔ مقتولہ کی ماں اور اس کی بہن کس طرح صدمے سے نڈھال تھی، اس کا اندازہ اس فوٹیج سے لگایا جا سکتا ہے۔ میری فرزانہ، میری ثنا، میرا ابراہیم، میرا سبات۔ شبیر نے جہلم میں 4 انسانی زندگیوں کو وحشتناک طریقے سے ختم کرنے کی مذمت کی ہے اور قاتل کو کسی بھی صورت میں معافی نہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا۔ ملک بھر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں